یہ آکاشوانی سری نگر ہے. اب آپ مبشر رفائی سے خبریں سنیے. پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر. کشمیر سے آدرش نگر دلی تک چلنے والی پارسل ٹرین سروس کا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کل کریں گے باضابطہ افتتاح. بھارت ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی سمت متحد ہو کر آگے بڑھ رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کا آسام میں لوگوں سے خطاب. ریاست میں 6300 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا کیا آغاز. ہندی دیوس کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات منعقد. وزیر اعظم کی عوام کو مبارکباد. اور دبئی میں T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں ابھی کچھ دیر بعد ہوگا بھارت کا مقابلہ پاکستان کے ساتھ. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کل کشمیر سے آدرش نگر دلی تک چلنے والی پارسل ٹرین سروس کا باضابطہ افتتاح کریں گے. یہ ریل سروس بڑگام ریلوے اسٹیشن سے دلی کے آدرش نگر ریلوے اسٹیشن تک چلا کرے گی. افتتاحی تقریب کل صبح 8 بجے نوگام سری نگر کے ریلوے اسٹیشن پر منعقد ہوگی. روزانہ چلنے والی اس پارسل وین کے 8 کوچ ہوں گے اور ہر کوچ میں 23 ٹن مال لوڈ کرنے کی گنجائش ہوگی. اس پارسل ریل سروس کو کشمیر کے باغبانی شعبے کے لیے انتہائی فائدہ بخش سمجھا جا رہا ہے اور میوہ صنعت سے وابستہ افراد نے یہ سروس شروع کیے جانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. کشمیر ویلی فروٹ گروورز اینڈ ڈیلرز یونین نے بھی پارسل ریل سروس شروع کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے. یونین کے چیئرمین بشیر احمد بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ہمارے لیے یہ بہت خوشخبری ہے کہ مرکزی حکومت نے اور یہاں کی انتظامیہ نے LG انتظامیہ نے ان کی استدعا پر ریلی حکام نے یہاں کشمیر سے فروٹ کے لیے کارگو ٹرین شروع کی ہے. چونکہ اس وقت جو انہوں نے شروع کیا ہے یہ 2 بوگی ہوگی اور انشاءاللہ 15 تاریخ کو 8 بوگی سے شروع ہوگی. کیونکہ ہمارے پاس ڈیلی 1000 گاڑی کے قریب مال ہوتا ہے. یہاں قریباً ڈیلی 1000 گاڑی باہر جاتی ہے باہر کے منڈی میں. ہماری ریکویسٹ ہے ان کی بوگی کی تعداد بڑھائی جائے اور ملک کے ہر ایک کونے میں یہاں سے ٹرین جانی چاہیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج آسام میں 6300 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بڑے بنیادی ڈھانچے اور صنعتی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک ہے اور آسام ملک میں سب سے تیز ترقی کرنے والی ریاستوں میں سے ایک ریاست بن گئی ہے. سرکار اور असम वासियों के साझा प्रयासों से आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है. वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया है. एक समय था जब असम विकास में पिछड़ा हुआ था, देश के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज असम करीब 13% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है. جموں، حیدرآباد اور ممبئی میں 3 کامیاب سٹارٹ اپ اجلاس کے بعد 2 روزہ چوتھا CSIR سٹارٹ اپ کنکلیو لکھنؤ میں آج سے شروع ہوا. مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اختراع کاروں، سٹارٹ اپ کارخانہ داروں، محققین اور انڈسٹری لیڈروں کے لیے ایک سنہری موقع ہے. دریں اثنا ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جموں کے ہیرا نگر سیکٹر میں زیرو لائن پر پاہر پور سرحدی چوکی پر BSF کے اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے قوت بینائی سے محروم خواتین کے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے کٹھوا ضلع سے تعلق رکھنے والی انیکھا دیوی کو بھارتی ٹیم میں شامل کیے جانے پر انہیں مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلیٰ نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ انیکھا دیوی اپنی بہترین کارکردگی سے جموں کشمیر اور پورے ملک کا نام روشن کرے گی. صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے خون کے عطیے کی مہمات کو اجاگر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک ایسی لائف لائن ہے جو ایمرجنسیز، طبی طریقہ کار اور قدرتی آفات کے دوران بے شمار زندگیوں کو بچا سکتی ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار گندن اسٹیڈیم راج باغ میں آج ایک بلڈ ڈونیشن اینڈ ویلنس کیمپ سے خطاب کے دوران کیا. تقریب پر وزیر اعلیٰ کے صلاح کار ناصر اسلم وانی، MLA لال چوک احسان پردیسی اور سکمز سورا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی کے علاوہ کچھ دیگر شخصیات بھی موجود تھیں. ڈائریکٹر سکمز نے اس موقع پر کہا کہ انسٹیٹیوٹ وادی میں ہر ایک شخص کے لیے بہتر صحت خدمات کی سہولیات فراہم کرنے کے عزم پر کاربند ہے. خوراک اور امور صارفین محکمے کی مرکزی وزیر مملکت نیمو بین جینتی بھائی بمبانیہ نے جموں ضلع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے نقصانات کا جائزہ لیا. ارکان قانون سازیہ شام لال شرما، وکرم رندھاوا اور موہن لال بھگت بھی ان کے ہمراہ تھے.
इस दौरान राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने आज जम्मू में सैलाब से मुतासरा खेरी कंगन इलाके का दौरा करके वहां हुए नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर मकामी बाशिंदों ने अपने मसाइल मेंबर मौसूफ की नोटिस में लाए। गुलाम अली खटाना ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में सैलाब मुतासरीन की राहत के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि हिंदी महज अपनी बात पहुंचाने का वसीला नहीं है, बल्कि ये मुल्क की शनाख्त और अक़दार की एक मुत्तहरिक विरासत है। दनी असना मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हिंदी को वक्त के साथ ज्यादा लचकदार बनाने और इलाकाई जबानों के साथ इसके बकाई बाहम को मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर दाखिला ने लोगों से कहा है कि वो अपनी मादरी जबान का एहतराम करते हुए हिंदी को भी तक़वियत पहुंचाएं। इसी दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर की राजभाषा सेल, भारतीय भाषा समिति नई दिल्ली और दीगर अंजुमनों के इश्तराक से 19 सितंबर को NIT श्रीनगर में हिंदी दिवस के सिलसिले में एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद कर रही है। तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बहैसियत मेहमानी खसूसी मौजूदगी मुतवक्के है। वजारत इत्तलात और नशरियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन लेह की तरफ से आज DIET लेह में एक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत डायरेक्टर CBC जम्मू कश्मीर व लद्दाख चौधरी गुलाम अब्बास ने की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। मरकजी हुकूमत ने अवामी मफाद में कई अशिया और खिदमात पर आयद GST की शरहों में जो माकूलियत लाई है, उसकी अवामी सतह पर ज़बरदस्त पजीराई की जा रही है। 33 हयात बख्श अद्वियात पर आयद 12% GST को मुकम्मल तौर ख़त्म किया गया है, जबकि ऐसी मजीद 3 अद्वियात पर आयद 5% GST को भी हटाया गया है। बाकी अद्वियात की GST शरह को 12% से घटाकर 5% के जुमरे में लाया गया है। अलावाजी मुख्तलिफ तिब्बी आलात जिनका इस्तेमाल मेडिकल, सर्जिकल और डेंटल प्रोसीजर में किया जाता है पर GST को 18 से घटाकर 5%, जबकि दीगर मेडिकल साजो सामान और सप्लाई चीज़ों मसलन बैंडेज, तशखीसी किट्स और ग्लूकोमीटर पर GST को मौजूदा 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने किसानों और उभरते हुए कारखानादारों के लिए रूरल क्रेडिट वर्कशॉप्स का सिलसिला शुरू किया है। यूनिवर्सिटी की चीफ साइंटिस्ट और डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रैहान हबीब कंट ने इस ज़िम्न में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। जो भी ये CIP है या HADP है, इनमें हर एक में लोन में बहुत लो इंटरेस्ट है। वो जो हमारे लीड बैंक वाले आते हैं वो बताते हैं उनको, या RSCT वाले भी बताते हैं कि अगर वहां से वोकेशनल ट्रेनिंग करें तो उनको क्या फायदा आ जाएगा, कैसे इजीली उनको लोन मिलेगा उनकी सर्टिफिकेट पे। और जो भी ये स्कीम्स हैं इनमें नॉर्मल इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट है और डिफरेंट जो है वो उनको बताया जाता है। तभी इसमें हमारे लीड बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हर एक प्रोग्राम में आए हैं, नाबार्ड के आए हैं और जो भी मार्केटिंग वाले हैं वो आए हैं। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट फार्मर्स को यही समझाना है कि कितना फायदा है अगर वो इन स्कीम्स के थ्रू लोन भी ले या ये सब्सिडी अवेल करें। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 वर्ष मुकम्मल होने के बाद अब तक ज़ायद 56 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर में इस योजना के लिए जम्मू कश्मीर बैंक लीड बैंक के तौर पर काम कर रहा है। बैंक के माली शमूलियत शोबे के इंचार्ज ज़मीर अहमद कादरी ने जनधन योजना के ताल्लुक से आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इसके पास PMJDY अकाउंट है, ही इज ऑटोमेटिकली एनरोल्ड अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जन सुरक्षा स्कीम है, यानी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, वो ऑटोमेटिकली उसके अंडर एनरोल हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और इनिशिएटिव ये लिया कि जो भी गवर्नमेंट की असिस्टेंस स्कीम्स हैं या सब्सिडी स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, किसी को विडो पेंशन मिलता है, किसी को ओल्ड एज पेंशन मिलता है, वो सारा उन्होंने DBT के तहत लाया है, यानी वो पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता। पहले ये होता था कि जिसके हक में वजीफा सैंक्शन होता था उसको फिर दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहां पे बहुत सारी लीकेज होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिसके पास PMJDY अकाउंट है एंड ही इज एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, देयर आर सम 323 schemes which have been brought under the ambit of DBT, तो वो पैसा डायरेक्टली बगैर किसी के सामने एप्लीकेशन डाले वो इसके अकाउंट में अपनी मुतय्यना मुद्दत में मिल जाता है।
डाक महकमे की तरफ से 8 सितंबर से 8 दिसंबर 2025 तक 2.5 अक्षर मौजू के तहत कौमी सतह के लेटर राइटिंग मुकाबले का एहतमाम किया जा रहा है। खत लिखने का मौजू है लेटर टू माई रोल मॉडल। मजीद तफसीलात के लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्रीनगर के दफ्तर के अलावा मोबाइल नंबर 9419965442 पर राबिता कायम किया जा सकता है। यूटी भर में कल मुनक़दा तीसरी कौमी लोक अदालत के दौरान 3,06,851 केस शिनवाई के लिए उठाए गए, जिनमें से इफ़ाम तफ़हीम के जरिए 2,39,533 केस निपटाए गए। रियासी जिले में श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन की यात्रा, जो कई दिनों तक मुलतवी रही थी और आज से दोबारा शुरू होने वाली थी, लगातार ताज़ा बारिश के सबब अगले अहकामात तक के लिए मौखर कर दी गई है। इस यात्रा को मुलतवी किए जाने का ऐलान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मीट द एमिनेंस उन्वान के तहत एक इंटरैक्टिव निशस्त की मेज़बानी की। आज प्रोग्राम के मेहमान इग्नू के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर एम असलम थे, जिन्होंने हाजरीन के सामने आला तालीम और फासिलाती निज़ामी तालीम के मैदान में अपने 47 साला यादगारी सफ़र का तज़किरा किया। आर्मी गुडविल स्कूल बांडीपोरा को तजुर्बाती पढ़ाई में उम्दा कारकर्दगी, जबकि आर्मी गुडविल स्कूल वुजुर को ग्लोबल इम्पैक्ट लर्निंग में एक्सीलेंस के लिए तस्लीम किया गया है और इस सिलसिले में इन स्कूलों को अवार्ड से नवाजा गया है। फौज की शुमारी कमान के एक बयान के मुताबिक ये अवार्ड FICCI की तरफ से दिए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने से ही यहाँ की तहजीब और सकाफत कायम रह सकती है। पहलगाम में एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि मरकज़ को जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों का एहतराम करना चाहिए। एक अलहदा बयान में उन्होंने कतर पर हुए हवाई हमलों की भी मजम्मत की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से आज जम्मू में एक ऑर्गेनाइजेशनल वर्कशॉप मुनक़द हुआ। इस वर्कशॉप में पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, प्रदेश सदर सत शर्मा, मरकजी वजीर डॉक्टर जतेंद्र सिंह, असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, MLA डॉक्टर नरेंद्र सिंह और पार्लियामेंट मेंबर जुगल किशोर के अलावा दीगर कई लीडरों ने शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान तंजीमी अमूरात पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। दरअसल पार्टी के कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट के सदर राजीव पंडिता की सदारत में पार्टी के सदर दफ्तर पर एक तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान टेकलाल टेपलो को उनके 37वें शहीदी दिवस पर खराज अकीदत पेश किया गया। पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह की सरबराही में नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत अभियान के मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़द हुआ। वर्कशॉप से पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा के अलावा दीगर कई लीडरों ने खिताब किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर की जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा की क़यादत में पार्टी के जम्मू कश्मीर कारकुनों की एक टीम ने भी इस वर्कशॉप में शिरकत की। पार्टी के जम्मू कश्मीर के तर्जुमान मंजूर भट्ट ने आम आदमी पार्टी के MLA मेराज मलिक की हिमायत करने पर PDP की नुक्ताचीनी की है। इस दौरान पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP मेराज मलिक के मामले पर सियासत कर रही है। इसी दौरान बीजेपी की स्वच्छ भारत अभियान टीम और आंजहानी गिरदारी लाल डोगरा ट्रस्ट ने जम्मू के सैलाब मुतासरीन में इमदादी मवाद तकसीम किया। इस काम की निगरानी अभियान के UT कन्वीनर इंजीनियर दिल बहादुर सिंह कर रहे थे। पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी और MLA डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने जम्मू में मुनक़दा एक तकरीब पर हालिया सैलाब के मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपये की इमदादी रकम देने का ऐलान किया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज डाक बंगला अनंतनाग में कई अवामी वफूद के साथ बात की और उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही वाली सरकार पर हर महाज पर नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि LG इंतज़ामिया लोगों को राहत पहुंचाने में मौसर इक़दाम करती है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। हर कोई अपने देश से प्रेम करता है, तो फिर उन लोगों का साथ क्यों देना, जाने अनजाने में भी क्यों देना, जो हमारे भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में एक सरकर्दा कलमकार डॉक्टर शबनम रफीक ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
ड्रग्स एक मौलिक वबा है। से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें, मजहबी तालीमात से उन्हें रोशनास करे, गैर जरूरी पैसे मुहैया न करे। आइमा, मसाजिद, उसातिज़ा किराम, जानी वगैरह उसके रोकथाम में अहम रोल अदा कर सकते हैं। महकमे पुलिस मुबारकबादी का मुस्तहिक है जिन्होंने ड्रग्स माफिया का कला कमा करने के लिए मुनासिब इकदाम उठाए हैं। क्रिकेट T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अभी कुछ देर बाद दुबई में ग्रुप ए के एक मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इस साल फरवरी के बाद से ये पहला मौका है कि जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इससे कबल भारत ने इस टूर्नामेंट में दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात को 9 विकेटों से करारी शिकस्त दी, जबकि पाकिस्तान ने इसी मैदान पर ओमान को 93 रन से हराया था। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 6:14 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:37 पर होगा। आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। कश्मीर से आदर्श नगर दिल्ली तक चलने वाली पार्सल ट्रेन सर्विस का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला कल करेंगे बाज़ाबिता इफ्तिताह। भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की समत मुत्तहिद होकर आगे बढ़ रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का आसाम में लोगों से खिताब। रियासत ने 6,300 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का किया आगाज। हिंदी दिवस के मौके पर मुल्क भर में तकारीब मुनक्कद। वजीर आज़म की आवाम को मुबारकबाद। और दुबई में T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अभी कुछ देर बाद होगा भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।